Hello everyone, welcome to the channel. On my previous video, I talked about our ninth cranial nerve, which is glossopharyngeal nerve. So if you have not seen that video, then click on the I button and watch that video now. Today I'm going to talk about our vagus nerve and accessory nerve together. मतलब आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग में रहने वाला 10वीं और 11वीं क्रेनियल नर्व्स के बारे में, जिसका नाम है एक वेगस और दूसरा एक्सेसरी नर्व। दोनों हम एक साथ पढ़ेंगे आज। तो जैसे मैंने पुराने वाले जो एक वीडियो है नर्व का क्लासिफिकेशन, उधर में मैंने बताया था आपको ये जो 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर ये 4 क्रेनियल नर्व्स है, वो 4 आपका ब्रेन स्टेम का लास्ट पार्ट मतलब मिडल ऑब्लोंगेटा से पैदा होता है। ठीक है, what I mean is on my earlier videos of classification of cranial nerve, I talked about that the 9th, 10th, 11th and 12th, these 4 cranial nerves arises from our लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम विच इज नोन एज मिडल ऑब्लोंगेटा। मतलब ये जो वेगस नर्व है और एक्सेसरी नर्व है, दोनों ही आपका मिडल ऑब्लोंगेटा से पैदा होता है। मगर एक चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, वो है ये जो एक्सेसरी नर्व है इसका 2 ओरिजिन होता है। एक पार्ट तो मिडल से आ रहा है, दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेसरी नर्व के लिए ये अलग सा स्पेशल है। ठीक है, तो हम एक एक बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वेगस नर्व के बारे में। वेगस नर्व का ओरिजिन जो आप फोटो में देख रहे हो, इसका 3 ओरिजिन होता है। एक आपका न्यूक्लियस एम्बिगुअस, जहां से आपका वेगस नर्व का स्पेशल विसरल इफेरेंट फाइबर्स ओरिजिन हो रहा है। दूसरा जनरल विसरल इफेरेंट फाइबर्स जो होता है वो ओरिजिन होता है आपका डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व। ठीक है, और तीसरा होता है आपका न्यूक्लियस ऑफ सोलिटरी ट्रैक्ट, या फिर हम जो शॉर्टकट में कहते हैं ट्रैक्टस सोलिटरियस। इधर में आपका जो सेंसरी कंपोनेंट है वेगस नर्व का, वो आके इधर में घुस जाता है। ठीक है, व्हाट आई मीन इज दिस वेगस नर्व arises from 3 nucleus. First one is nucleus ambiguous. From this special visceral efferent fibers arises of vagus nerve. Dorsal nucleus of vagus nerve. From these general visceral efferent fibers arises of vagus nerve. And the third one is nucleus of solitary tract, or we call it shortcut as a tractus solitarius. From these, I mean the sensory fibers, I mean efferent fibers inserts inside of this tractus solitarius or this nucleus. Okay, so motor components, motor fibers are going and sensory fibers are coming. Okay, तो ऐसा है। मगर हम वीडियो में जब हम बात करेंगे तो अब जो पूरा आने जाने का जो दोनों फाइबर्स है वो हम आपको एक साथ बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस after arising from the middle oblongata, this vagus nerve goes little anteriorly and straight goes downward and exits from our skull cavity via a one foramen which is jugular foramen. Now after coming out from the jugular foramen, okay, we stop up to this part. Okay, now next parts are very complicated. Okay, वो मेरा कहने का मतलब ये है कि मिडल ऑब्लोंगेटा से पैदा होने के बाद ये वेगस नर्व थोड़ा सामने की तरफ जाते ही नीचे की तरफ चला जाता है, और हमारा जो ये खोपड़ी है, खोपड़ी से बाहर निकल जाता है। कैसे? एक छेद के जरिए। किस छेद के जरिए? जुगुलर फोरामेन के जरिए ये बाहर निकल जाता है। तो इधर तक, इतना तक हम थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि आगे वाला पार्ट और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट। नाउ इन दिस सेकंड पार्ट आई एम गोना टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ एक्सेसरी नर्व. Or as I told you that accessory nerve arises from 2 components. One is from our middle oblongata, which is a part of brainstem. Another part coming from the spinal cord. Okay, as you know that this middle oblongata presents inside of our skull. I mean inside of our skull cavity. I mean inside of our cranium. I mean inside of our cranial cavity. All these things are similar. Okay. Now inside of our cranial cavity there is middle oblongata, and inside of middle oblongata there is a nucleus ambiguous. Now from the bottom part of this nucleus ambiguous, few fibers arises, and these fibers are known as cranial fibers of accessory nerve or cranial part of accessory nerve. Okay, that's it. Now after coming out from the middle oblongata, this cranial fibers goes anteriorly just like vagus nerve, and it goes downward just like vagus nerve, and exits from our this skull cavity just like our vagus nerve through jugular foramen and goes little downward. Now this vagus nerve and accessory nerve both going together downward. Okay, and this combination we call it vago accessory complex. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस कहाँ पर रहते हैं? मिडल ऑब्लोंगेटा के अंदर। ठीक है, और मिडल ऑब्लोंगेटा कहाँ पर है? हमारे खोपड़ी के अंदर। अब खोपड़ी मतलब क्रेनियम, इसको हम अंग्रेजी में स्कल कहते हैं या फिर क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस का जो नीचे वाला पार्ट है, इधर से आपका ओरिजिन होता है कुछ फाइबर्स जो आपका अल्टीमेटली
एक्सेसरी नर्व का क्रेनियल फाइबर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं क्रेनियल फाइबर्स क्योंकि ये क्रेनियम के अंदर है, मतलब स्कल कैविटी के अंदर में, अब समझ गए ना। तो ये क्रेनियल फाइबर्स क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से बाहर निकलते ही ये वेगस नर्व की तरफ थोड़ा सामने में चलता है, फिर नीचे में चला जाता है वेगस नर्व की तरफ, और जुगुलर फोरामेन से, मतलब एक छेद होता है जुगुलर फोरामेन, इसी से बाहर निकल जाता है वेगस नर्व की तरफ। तो इतना रास्ता तक वेगस नर्व की तरह ही साथ साथ चला है। तो ये जो साथ साथ चलने वाला जो दो साथी है, इसको हम एक साथ कहते हैं वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हो गया इतना तक। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सेसरी नर्व का जो स्पाइनल पार्ट है उससे। जैसे आप जानते हो हमारे गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, 1 से लेके 7 तक 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। तो पहले से लेके 5 नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रा तक इसके अंदर जो छेद है, मतलब वर्टिब्रल फोरामेन, इसमें क्या रहता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड आप जानते ही हो हमारा ब्रेन स्टेम का कंटिन्यूएशन पार्ट है, वो तो अब पुराने वीडियो है, नहीं पता है तो देख लो चेक करके। ये जो 1 नंबर से लेके 5 नंबर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, यहाँ तक जो स्पाइनल कॉर्ड था, इधर से कुछ कुछ फाइबर्स निकलता है, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, इधर से कुछ कुछ फाइबर्स निकलता है और एक साथ इकट्ठा होकर बनता है आपका एक मोटा वाला फाइबर बनता है, ठीक है, नर्व फाइबर्स बनता है, जो आपका सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर में क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मतलब 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर सर्विकल वर्टिब्रा, 3 नंबर सर्विकल वर्टिब्रा, 2 नंबर 1 नंबर सर्विकल वर्टिब्रा क्रॉस करके हमारा जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर में घुस जाता है। कैसे घुसता है, क्योंकि नीचे में एक बहुत बड़ा वाला छेद है जिसका नाम है फोरामेन मैग्नम। मैग्नम के जरिए ये फाइबर्स जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा था वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर जाते क्या होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में तरफ घुस जाता है, ऊपर घुस के ये सामने की तरफ जाता है, सामने से जाके थोड़ा नीचे की तरफ फिर से चला जाता है, और नीचे की तरफ जाते ही ये जुगुलर फोरामेन से बाहर निकल जाता है, ठीक है। मतलब ये जो एक्सेसरी नर्व का 2 पार्ट है, एक क्रेनियल एक स्पाइनल। तो कभी कभी हम दोनों को एक साथ ही बोल देते हैं क्रेनियो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है, या फिर शॉर्टकट में 11 नंबर क्रेनियल नर्व बोल देते हैं, ठीक है, खत्म, झंझट खत्म, ठीक है। तो वेगस नर्व और एक्सेसरी नर्व दोनों नर्व का ओरिजिन कैसे होता है, पैदा कैसे होता है, आप जान गए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस हम आगे बढ़ते हैं। क्रेनियल फाइबर्स ऑफ एक्सेसरी नर्व एंड वेगस नर्व both are coming out from the medulla oblongata together, both are going anteriorly together, both descends mean going down together, both comes out from our skull cavity through jugular foramen together, both goes downward little bit together, and it goes little bit anteriorly. In anteriorly it forms pharyngeal plexus together. I mean this vagus nerve and cranial fibers of axillary nerve forms together a pharyngeal plexus in local network or group of neurons. So from these pharyngeal plexus 2 fibers arises. One is palatal branch, another is pharyngeal branch. Okay, palatal branch supplies our palate, hard palate and soft palate. This is our upper part of mouth which is known as palate. So palatal branch supplies this area and pharyngeal branch supplies our behind the nose, behind our oral cavity, this pharyngeal area. Okay, that's it. pharyngeal plexus हो गया, मतलब वेगस नर्व एक्सेसरी नर्व दोनों मिलके एक साथ फॉर्मेशन कर रहा था pharyngeal plexus, ठीक है। अब इस प्लेक्सस से एक और ब्रांच निकलता है, ठीक है, वो ब्रांच क्या होता है, हमारा कान का जो पर्दा है इसको सप्लाई करता है, और हमारे कान के बाहर जो ये चमड़ा है, ये स्किन, चमड़ा, ये स्किन, फिर अंदर तक जो रास्ता है, ये जो पूरा एरिया चमड़ा है इसको सप्लाई करता है। व्हाट आई मीन इज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ pharyngeal plexus a little one branch arises which supplies our tympanic membrane and side by side this skin of our external ear. Okay, from this skin and also inside of our these external acoustic meatus. The skin is supplied by the vagus nerve, I mean the branch of vagus nerve. Okay, now after giving this vagus nerve continues going downward, and after going little downward it gives another 2 branch. One is superior laryngeal, another is inferior laryngeal. Okay, मतलब ये हमारे pharyngeal plexus और कान का जो पर्दा है इसमें जो ब्रांच होता है वो सप्लाई देने के बाद वेगस नर्व फिर से नीचे की तरफ बढ़ता है, और नीचे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, गले की तरफ आते ही ये 2 और ब्रांच देता है, एक आपका सुपीरियर लेरिंजियल, दूसरा आपका इंफीरियर लेरिंजियल। हियर इज एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज पॉइंट फॉर यू इज अबव देयर इज हाइवेड बोन, below the hyoid bone there is thyroid cartilage, and below the thyroid cartilage there is cricoid cartilage.
okay. Two cartilage, one bone. Now in between hyoid bone and thyroid cartilage there is one membrane, we call it thyrohyoid membrane, and inside of that membrane there is thyrohyoid muscle, okay. Now in between thyroid cartilage and cricoid cartilage there is one muscle, cricothyroid muscle, okay. As I said, vagus nerve giving two branch, one is superior laryngeal, another is inferior laryngeal, okay. This superior laryngeal divides into two part again, or two branch again. One branch is known as internal laryngeal, another is external laryngeal, ठीक है, okay. This internal laryngeal pierces the thyroid membrane and supplies the thyroid muscle, and this external laryngeal nerve supplies the cricothyroid muscle, okay. अब ये ठीक है, क्या होता है, ये जो मैंने अभी बताया था कि वेगस नर्व गले की तरफ आते ही दो और ब्रांच देता है, एक आपका सुपीरियर लेरेंजियल, दूसरा आपका इंफीरियर लेरेंजियल, ठीक है। सुपीरियर लेरेंजियल क्या होता है, ये सामने जगह और दो हिस्से में बट जाता है, जिसका नाम होता है एक आपका इंटरनल लेरेंजियल और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल लेरेंजियल। इंटरनल लेरेंजियल क्या होता है, ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन को छेद करके अंदर में घुस जाता है और घुस के अंदर में जो थायरोहाइड मसल है इसको सप्लाई करता है, और जो इंटरनल लेरेंजियल है वो आपका क्रिकोथायरॉइड मसल को सप्लाई करता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, वेगस नर्व से दो ब्रांच निकलता है, एक सुपीरियर लेरेंजियल, इंफीरियर लेरेंजियल। सुपीरियर लेरेंजियल का दो पार्ट इंटरनल एक्सटर्नल हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ इंफीरियर लेरेंजियल की, ठीक है। इंफीरियर लेरेंजियल नर्व क्या होता है, क्रिकोइड के नीचे जो भी स्ट्रक्चर है और बाकी आसपास में जो भी गले में मसल है सबको सप्लाई करता है, ठीक है। एक चीज, इंफीरियर लेरेंजियल नर्व, इसका एक छोटा सा प्यारा सा निक नेम होता है जिसको हम कहते हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। आई मीन दिस इंफीरियर लेरेंजियल नर्व इज ऑल्सो नोन एज recurrent laryngeal nerve, okay, just like a nickname. Here is very famous question comes in every year in theory, in viva, in also entrance exam. This inferior laryngeal nerve, or which is also known as recurrent laryngeal nerve, supplies every muscles of our throat except cricothyroid, which is supplied by external laryngeal nerve, which is a branch of superior laryngeal nerve, which is a branch of vagus nerve, okay। मतलब एक बहुत प्यारा सा और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आपका सालों के बाद, साल से सदियों से चलती आ रहा है आपका थ्योरी में, भाइबा में, एग्जाम में, एंट्रेंस में, कहीं भी आता है, वो है ये जो इंफीरियर लेरेंजियल नर्व है। अब इंफीरियर लेरेंजियल नर्व को हम रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी कहते हैं, ठीक है, दोनों ही एक ही है। तो ये नर्व क्या करता है, हमारे गले में जितने सारे मसल्स है सबको सप्लाई करता है, सिवाय एक मसल का जिसका नाम है क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड मसल को इंफीरियर लेरेंजियल नर्व सप्लाई नहीं करता है, क्रिकोथायरॉइड मसल को रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई नहीं करता है। अब इंफीरियर लेरेंजियल, रिकरेंट लेरेंजियल दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसको क्रिकोथायरॉइड मसल को कौन सप्लाई करता है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। अब एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व किसका ब्रांच है, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व का। सुपीरियर लेरेंजियल किसका नाम है, सुपीरियर लेरेंजियल किसका ब्रांच है, वेगस नर्व का, ठीक है। ये पूरा चेन आपको दिमाग में हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फाइनल ईयर में भी, सर्जरी में भी, ठीक है। हर जगह में आपको काम आएगा, एंट्रेंस में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्या होता है, वेगस नर्व फिर से नीचे की तरफ जाता है, गले से हमारे नीचे की तरफ जाता है। क्या होता है, हमारा जो इसोफेगस का नीचे वाला पार्ट है इसको भी सप्लाई करता है, ठीक है। इतना तक जाके एक और ब्रांच देता है हमारे हार्ट की तरफ, मतलब हमारे दिल की तरफ। इसका कुछ ब्रांच हमारे दिल में भी जाता है, नीचे जाके इसका कुछ ब्रांच हमारे लीवर में भी जाता है, कुछ, ठीक है। लीवर को भी सप्लाई करता है। पूरा जो हमारा पाकस्थली है, स्टमक है, पूरा स्टमक को सप्लाई करता है। स्टमक के बाद जो पार्ट है आपका ड्यूडेनम, इसको भी सप्लाई करता है। इसको भी सप्लाई करने के बाद हमारे पेट, ठीक है, हमारा जो पेट के अंदर जो नाली है जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका दो पार्ट होता है, पहला वाला हिस्सा जेजुनम, लास्ट वाला हिस्सा इलियम। तो जेजुनम का आधा हिस्सा ये सप्लाई करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं, वेगस नर्व को कहते हैं सबसे लंबा वाला क्रेनियल नर्व, ठीक है। व्हाट आई मीन इज, आफ्टर गिविंग द ब्रांचेस ऑफ आवर थ्रोट, दिस वेगस नर्व कंटिन्यूज गोइंग डाउनवर्ड, and while going downward it gives supplies our lower part of esophagus, okay। It going still downward,
and it gives one branch to our heart is cardiac branch. It also gives branch to our liver which are known as hepatic branch. After this vagus nerve still going downward and gives nerve supply to our entire stomach. Okay, so vagus nerve supplies our entire stomach. It also gives supplies to our entire duodenum, and it also supplies our few part of our intestine. Now our small intestine has two part. First part is known as duodenum and last part is ileum. Now upper half part of the duodenum is also supplied by this vagus nerve. So can you understand? So can you imagine that this vagus nerve started from this medulla oblongata and is going downward up to the mid gut. Okay, that's why we call it, this vagus nerve is the longest cranial nerve in our body. Okay, तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं. vagus nerve मेडुला ओब्लोंगाटा के अंदर में रहने वाला 3 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस एम्बिगुअस, दूसरा डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, तीसरा ट्रैक्टस सोलिटरियस से बाहर निकल रहा है. बाहर निकलते ही थोड़ा सामने में जाके थोड़ा नीचे चला जाता है और जुगुलर फोरामेन से बाहर निकल जाता है. ठीक है, अब बाहर निकलते ही एक ब्रांच देता है जो आपका 11 नंबर जो क्रेनियल नर्व है उस नर्व के साथ मिलके एक फेरेंजियल प्लेक्सस फॉर्मेशन करता है जो आपका आगे जाके 2 हिस्से में बट जाता है, एक पैलेटल और एक फेरेंजियल ब्रांच. खत्म. अब थोड़ा और नीचे जाके 2 और ब्रांच देता है, एक सुपीरियर लेरिंजियल और एक इंफीरियर लेरिंजियल. सुपीरियर लेरिंजियल 2 और ब्रांच देता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. इंटरनल हमारा थायरोइड मसल को मतलब थायरोइड मेम्ब्रेन को छेद करके थायरोइड मसल को सप्लाई करता है और एक्सटर्नल वाला हमारे क्रिकोथायरॉइड मसल को सप्लाई करता है. खत्म. इंफीरियर लेरिंजियल जिसका एक और नाम है रिकरल लेरिंजियल, वो हमारे गले में जितने सारे मसल है सबको सप्लाई करता है. ठीक है, सिवाय क्रिकोथायरॉइड मसल को जो आपका एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व सप्लाई कर रहा है. खत्म. वेगस नर्व थोड़ा और नीचे जाता है, हमारा इसोफेगस में जो खाने का जो नाली है इसका नीचे वाला पार्ट को सप्लाई करता है. फिर कुछ ब्रांच देते हैं हमारे दिल की तरफ, कुछ ब्रांच देते हैं हमारे लिवर की तरफ, हमारा पूरा पाकस्थली को सप्लाई करता है मतलब स्टोमक को सप्लाई करता है. फिर हमारा ड्यूडेनम को सप्लाई करता है. फिर हमारा जो इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम, इसका भी आधा हिस्सा सप्लाई करता है. इधर से लेके इधर तक पूरा जर्नी इधर ही खत्म, वेगस नर्व खत्म. तो अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो किताब पढ़ लो या फिर मेरा वीडियो फिर से एक बार देख लो. ठीक है, किताब पढ़ के आप घंटा कुछ नहीं समझोगे, इसलिए मैंने इसको वीडियो बना के रिप्रेजेंट किया हो. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फिर मिलेंगे लास्ट वाला आखिरी क्रेनियल नर्व्स का रिव्यू लेके. तब तक के लिए बाय.